Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Soumya. We are focusing on Group 2 of CS Executive Course, Paper 6, Economic, Commercial and Intellectual Property Laws. In our last video, we covered Chapter 15 on Intellectual Property Rights. Today, we are kicking off with Chapter 16, which covers the crucial laws related to patents. We'll explore what patents are, the criteria for patentability, and how these laws impact innovation and intellectual property. So let's get started and break down everything you need to know for your exams. Let's begin with some important definitions given in the Act. You can use these definitions as an introduction for your answer. First is patent. What is patent? We have already studied the introduction for the patent in Chapter 15. ये एक लीगल राइट होता है दैट इज़ ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर फॉर हिज न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन. वो उसे एक एक्सक्लूसिव राइट देता है टू यूज़, मेक, सेल एंड लाइसेंस हिज इन्वेंशन. दिस मीन्स नो वन एल्स कैन लीगली यूज़ और प्रॉफिट फ्रॉम हिज इन्वेंशन without his permission. Let's read the definition that is given under the Act, Section 2, Subsection 1, Clause M of the Patents Act 1970 defines the term patent as to mean a patent for any invention granted under the Patents Act. A more exhaustive definition is given in the book, that is, a patent is a statutory right granted for a limited period of time to the patentee by the government in exchange of full disclosure of his invention for excluding others from making, using, selling, importing the patented product or process without his consent. नेक्स्ट डेफिनेशन इज पेटेंटी. पेटेंटी कौन होता है? वो पर्सन जिसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है. बेसिकली ही इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट. इट्स डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. पेटेंटी मीन्स द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग entered on the register as the grantee or proprietor of the patent. The next definition that we need to see is invention. इन्वेंशन एक न्यू और यूजफुल आइडिया है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी से ओरिजिनेट हुआ है. इट्स डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे. इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस involving an inventive step and is capable of industrial invention. So we have read three definitions. First is of patent, next is patentee, and third is invention. The next topic is what are the criteria of patentability. Mark it as very important. An invention is patentable subject matter if it meets the following criteria. 4 criteria define करे हैं. First, it should be novel, that is, it should be new and has not been previously known or used by the others. ये एक ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए एंड जो भी पब्लिक में पहले से अवेलेबल है उससे कुछ अलग होना चाहिए. नेक्स्ट इज इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस. जो आइडिया आपने सोचा है वो इतना यूनिक एंड क्रिएटिव होना चाहिए कि किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वो सोचना आसान ना हो. दैट इज़ इट शुड बी नॉन ऑब्वियस. थर्ड, इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इन्वेंशन को किसी रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जा सके वो ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ it should not attract the provisions of Section 3 and 4 of Patents Act 1970. इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए जो कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के अंडर ना आ रहा हो. सेक्शन 3 में उन इन्वेंशन को एक्सक्लूड किया है जो कि नॉन पेटेंटेबल है, लाइक साइंटिफिक थ्योरीज, मैथमेटिकल मेथड्स एक्सेट्रा. एंड सेक्शन 4 में स्पेसिफिक कैटेगरीज लाइक एटॉमिक एनर्जी के इन्वेंशन को पेटेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्वेंशन को उन एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना चाहिए. सो एक इन्वेंशन को पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट, नॉवल होना चाहिए. सेकंड, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए. थर्ड, इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. एंड लास्ट, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजंस में वो नहीं आना चाहिए. While writing the criteria of patentability, आप अपने आंसर में एक केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हो, दैट इज़ राज प्रकाश वर्सेस मंगट राम चौधरी, जिसमें बताया था कि इन्वेंटिव क्रिएशन का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को डिस्कवर करना जो कभी पहले किसी ने नहीं ढूंढी. दैट मीन्स द इन्वेंशन शुड बी ट्रूली नॉवल एंड यूनिक. लेट्स रीड.
It was held that inventive creation, as is notable, is to discover something or find something not found or found by anybody previously. The next topic is what are the advantages of patents. This is also important. First is पेटेंटी के पास राइट है कि वो किसी भी आउटसाइडर को अपने प्रोडक्ट को यूज़, सेल, डिस्ट्रीब्यूट या ऑपरेट करने से रोक सकता है बिना उसके परमिशन के. द कीवर्ड हियर इन दिस पॉइंट इज़ यूटिलाइज. नेक्स्ट इज पेटेंटी अपने पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट के लिए सूट फाइल कर सकता है एंड उसको रेमेडीज़ मिलती हैं लाइक इंजंक्शन, कॉम्पेंसेशन एंड प्रॉफिट सेटलमेंट अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ इन्फ्रिंज्ड हिज पेटेंट. The keyword in the second point is sue. Third is पेटेंटी अपने इन्वेंशन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है, दैट इज़ वो बाय, सेल, यूज़ एक्सेट्रा कर सकता है एंड वो किसी भी स्किल्ड इंडिविजुअल को उसका लाइसेंस दे सकता है. द कीवर्ड इन द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सप्लॉइट. फोर्थ इज़ जो भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर है पेटेंट का, वो भी पेटेंटी के राइट्स का यूज़ कर सकता है एंड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में सूट फाइल कर सकता है. द कीवर्ड हियर इज़ राइट्स. लास्ट इज़ पेटेंटी को इन्वेंशंस में अगर कोई मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट करने हैं तो वो कर सकता है एंड अगर उसको कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हैं तो उसका भी पेटेंट राइट्स उसे मिल सकता है. द कीवर्ड हियर इज़ चेंजेस. सो इसके एडवांटेजेस को हम 5 पॉइंट्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज़ यूज़, स्यू, एक्सप्लॉइट, राइट एंड चेंज. यूज़ का हो गया कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी आउटसाइडर को यूज़ करने के लिए. अगर उसका पेटेंट इन्फ्रिंज होता है तो वो स्यू कर सकता है. वो अपने पेटेंट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है. जो भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर है उसके पास सेम राइट्स है लाइक द पेटेंटी. एंड लास्ट की अगर उसको कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर सकता है. सो दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ द पेटेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस. The following are not inventions within the meaning of Section 3 of the Act. Section 3 में specifically 15 points बताए हैं जो कि inventions नहीं है. The first is frivolous और contrary inventions. जो inventions absurd है या clearly against है well established law के, वो patentable नहीं है. For example, एक device जो claim करे कि वो बिना किसी medical treatment के सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है, ये क्लेम साइंटिफिक बेसिस के बिना एब्सर्ड है. नेक्स्ट, हार्मफुल इन्वेंशंस. जो भी इन्वेंशंस पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी या इन्वायरमेंट को सीरियस हार्म पहुंचाते हैं वो पेटेंटेबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो हार्मफुल एमिशंस को प्रोड्यूस करे या कोई भी इन्वेंशन जो इन्वायरमेंट या हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, उसका पेटेंट नहीं मिल सकता. नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को पेटेंट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, ये फंडामेंटल थ्योरीज हैं जो पेटेंट नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज नोन सब्सटेंसेस. नए फॉर्म्स या कोई भी यूज़ ऑफ नोन सब्सटेंस का जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव नहीं करते वो पेटेंटेबल नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मशीन होती है जिससे शुगर केन का जूस निकलता है. अगर आप उसी से ही फ्रूट जूस निकाल दोगे, इट इज़ जस्ट अ मेयर डिस्कवरी ऑफ समथिंग दैट वाज ऑलरेडी नोन टू अस. तो इसका पेटेंट आपको नहीं मिल सकता. नेक्स्ट इज़ मेयर एडमिक्सचर्स. वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ मिक्सचर से बनते हैं और कॉम्पोनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को एग्रीगेट करते हैं, वो भी पेटेंटेबल नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दिया, एक नया मिक्सचर तो बन गया पर कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ नहीं है. नेक्स्ट इज़ नोन डिवाइसेस अरेंजमेंट. एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को नए लेआउट में अरेंज करना, जब वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं तो वो पेटेंटेबल नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर मेथड्स. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर मेथड्स का पेटेंट नहीं मिलता. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ट्रेडिशनल मेथड जिससे कि क्रॉप प्लांट करते हैं वो पेटेंटेबल नहीं है. नेक्स्ट इज़ मेडिकल प्रोसेस. ह्यूमन या एनिमल्स के ट्रीटमेंट मेथड्स जो जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करते हैं वो पेटेंटेबल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आप हॉट टी एंड हनी पीते हो,
ये एक जनरल ट्रीटमेंट मेथड है दैट इज़ नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, एनिमल्स या उनके पार्ट्स का पेटेंट नहीं होता एक्सेप्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नई वैरायटी ऑफ रोज़ या कोई भी एक नई ब्रीड ऑफ डॉग, ये एनिमल्स और प्लांट्स पे पेटेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एंड बिजनेस मेथड्स। प्योरली मैथमेटिकल बिजनेस मेथड्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का पेटेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक नया एल्गोरिदम या कोई नया मैथमेटिकल फार्मूला, दिस इज़ नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक वर्क्स का पेटेंट नहीं मिलता, ये क्योंकि ये कॉपीराइट के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक नई नॉवल या पेंटिंग, ये कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड है एंड पेटेंट के अंदर नहीं। नेक्स्ट इज मेंटल एक्ट मेथड्स। मेंटल एक्ट्स या गेम्स पे पेटेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए कोई नया टेक्निक या लूडो को या चेस को खेलने के लिए कोई नया मेथड, दिस इज़ नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन को किसी नए फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, दैट इज़ नॉट पेटेंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी डेटा को एक यूनिक चार्ट में डिस्प्ले कर देना। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का टोपोग्राफी पेटेंट के अंदर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोचिप का लेआउट डिज़ाइन या मदरबोर्ड का नया डिज़ाइन। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज या कोई भी नोन प्रॉपर्टीज़ जो ट्रेडिशनल कंपोनेंट से होती है वो पेटेंटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी मिल्क जो हम पीते हैं, जो हमें बताया गया है कि इट इज़ फॉर योर स्ट्रॉन्ग बोन्स, वो पेटेंटेबल नहीं है। कोई भी ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडी जो सेंचुरीज से यूज़ होती आ रही है, दैट इज़ नॉट पेटेंटेबल। सो सेक्शन 3 में ये 15 पॉइंट्स कवर होते हैं। You can learn the keywords and then you can frame the sentences on your own. Let's conclude this topic. Section 3 में define किया गया है कि what are not inventions, उसमें 15 points है. Keep on writing the keywords as I speak. First is frivolous or contrary inventions. Second is harmful inventions. Next, scientific principles and theories. Next, known substances. Next, mere admixtures. Then, known devices arrangement, agricultural methods, medical processes, plants and animals, mathematical and business methods, artistic works, mental act methods, information presentation, topography of integrated circuits, and traditional knowledge. You can learn any 10 to 12 points. एंड जब भी आंसर आएगा, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे पेटेंट की डेफिनेशन, इन्वेंशन की डेफिनेशन, फिर उसमें हम लिखेंगे कि व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, एंड कोई भी 10 to 12 आप लिख दोगे डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट इज़ सेक्शन 4, जिसमें कि बताया गया है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशंस पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। दिस रेस्ट्रिक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इन्वेंशन न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन या कोई एटॉमिक एनर्जी के यूज़ को इन्वॉल्व करता है तो उस इन्वेंशन पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ नेशनल सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंसर्न्स के अंदर ही रहे। सो जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, उसमें हम 2 सेक्शंस लिखेंगे। सेक्शन 3 जिसमें कि 15 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, एंड सेक्शन 4 जो कि प्रोहिबिट करता है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशंस पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 6, पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। सेक्शन 6 में डिफाइन करा गया है कि कौन पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। फर्स्ट इज ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जिसने भी वो इन्वेंशन को इन्वेंट करा है, दैट इज़ उसका प्रोप्राइटर, जिसने पहले सबसे इन्वेंट करी है वो चीज़, वो अप्लाई कर सकता है। सेकेंड इज बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर।
अगर इन्वेंटर ने अपने राइट्स किसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो जो भी पर्सन उसका असाइनी है वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। थर्ड इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ए ने कोई भी इन्वेंशन करा तो ए खुद फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। अगर ए ने अपनी राइट्स बी को ट्रांसफ़र कर दिए तो बी कर सकता है उसका एप्लीकेशन फाइल, एंड इफ़ ए डाइज तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है। द एप्लीकेशन में बी मेड बाय वन ऑफ द पर्सन्स ईदर अलोन और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। आप अपनी एप्लीकेशन अकेले भी कर सकते हो और जॉइंटली भी कर सकते हो विद योर असाइनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो आई हैव मेड दिस शॉर्ट summary type of a chart so that it will be easy for you to remember. तो एप्लीकेशन कौन दे सकता है? इन्वेंटर, असाइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव either alone or jointly. Next is section 7, form of application. We will refer my handwritten notes as I have simplified the content in it. Section 7 कहता है कि पेटेंट एप्लीकेशन एक ही इन्वेंशन के लिए की जा सकती है. It requires that every application for a patent shall be made for one invention only. Second point is, where the application is made by virtue of assignment, the application proof of the right to make application shall be furnished. It says that कि अगर एप्लीकेशन असाइनमेंट के थ्रू की गई है तो प्रूफ ऑफ राइट टू मेक एप्लीकेशन आपको सबमिट करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपने राइट्स असाइन कर दिए बी को, तो बी जब एप्लीकेशन करेगा फाइल तो उसको प्रूफ ऑफ सच असाइनमेंट सबमिट करना होगा. नेक्स्ट इज, एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर PCT as may be filed designating India shall be deemed to be an application under the Act if the corresponding application has also been filed to controller in India. अगर कोई इंटरनेशनल एप्लीकेशन PCT के अंडर फाइल की गई है जिसमें इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है तो उसे इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन माना जाएगा अगर आप वो करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया के कंट्रोलर को फाइल कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन के लिए PCT के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करेगा एंड उसमें इंडिया को डेजिग्नेट करेगा तो वो एप्लीकेशन इंडिया में भी वैलिड होगी प्रोवाइडेड वो इंडिया में कंट्रोलर को एप्लीकेशन फाइल करे. द फाइलिंग डेट फॉर सच एप्लीकेशन शैल बी द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अकॉर्डेड अंडर PCT. जो भी आपने करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करी है उसकी फाइलिंग डेट क्या होगी? जो भी PCT के अंदर इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है वही फाइलिंग डेट इंडियन पेटेंट ऑफिस के लिए भी होगी. एवरी एप्लीकेशन except convention application or application filed under PCT shall be accompanied by provisional or complete specification. इसको हम कवर करेंगे सेक्शन 9 में. सो टू समराइज सेक्शन 7 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी. फर्स्ट, कि पेटेंट एप्लीकेशन एक ही इन्वेंशन के लिए फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, कि अगर आपने अपने राइट्स किसी को असाइन कर दिए हैं तो जो भी एप्लीकेशन करेगा असाइनी उसको प्रूफ ऑफ सच असाइनमेंट सबमिट करना होगा. नेक्स्ट, कि अगर आपने इंटरनेशनल एप्लीकेशन PCT के अंदर करी है तो उसे इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन तब माना जाएगा जब आप वो करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया के कंट्रोलर को भी दो. एंड नेक्स्ट, उसकी फाइलिंग डेट क्या होगी? जो भी PCT के अंदर इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है वही फाइलिंग डेट होगी. द नेक्स्ट टॉपिक is what is the Patent Cooperation Treaty. The PCT is an international treaty with more than 150 contracting states which are bound with certain formal requirements set out in the treaty and regulations. PCT एक international treaty है जिसमें more than 150 contracting states हैं and वो contracting states bound हैं by the formal requirements which are set under the treaty. The PCT makes it possible to seek patent protection for an invention simultaneously in a large number of countries by filing a single international patent application instead of filing several separate national
और रीजनल पेटेंट एप्लीकेशन। पीसीटी के थ्रू आप अपने इन्वेंशन के लिए एक सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो एंड मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट प्रोटेक्शन ले सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट कंट्रीज। However, granting of patents remain under the control of the national or regional patent offices after the corresponding national phase application has been filed and national phase application is assessed as per patent law of that jurisdiction. However, जो पेटेंट ग्रांट करने की अथॉरिटी है वो उस पेटेंट ऑफिस के कंट्रोल में ही है। दैट इज़ कि जहाँ आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी है उस कंट्री के पेटेंट ऑफिस के कंट्रोल में ही है कि आपको वो पेटेंट ग्रांट होगा या नहीं होगा। हर जुरिस्डिक्शन के पेटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को वहाँ के पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग असेस करते हैं एंड देन दे डिसाइड वेदर सच पेटेंट शैल बी ग्रांटेड और नॉट। टू समराइज, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विद मोर देन 150 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। पीसीटी के थ्रू आप अपने इन्वेंशन के लिए एक सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इट इन मल्टीपल कंट्रीज। बट पेटेंट ग्रांट करना उस कंट्री के पेटेंट ऑफिस के कंट्रोल में है। हर कंट्री का पेटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को अपने कंट्री के पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग असेस करेंगे एंड देन they will decide that whether such patent shall be granted or not. Next is Section 9. When an application for patent is accompanied by provisional specification, a complete specification shall be filed within 12 months from the date of filing of application. Section 9 कहता है कि अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन किसी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल होती है तो एप्लीकेंट को विदिन 12 मंथ्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होगा। What is provisional specification? ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो पेटेंट एप्लीकेशन के लिए फाइल किया जाता है जब आपका इन्वेंशन डेवलपमेंट स्टेज में होता है एंड एप्लीकेंट को कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। इस डॉक्यूमेंट का जो पर्पस है वो है कि इन्वेंशन की प्रायोरिटी डेट को सिक्योर करना ताकि एप्लीकेंट को इन्वेंशन के ऊपर काम करते हुए किसी और के सिमिलर आइडिया के पेटेंट क्लेम से प्रोटेक्शन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक न्यू मशीन इन्वेंट करी बट उसके टेक्निकल एस्पेक्ट अभी क्लियर नहीं है। ही विल फाइल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड सिक्योर अ प्रायोरिटी डेट बट विदिन 12 मंथ्स ही हैज़ टू सबमिट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जिसमें वो सारे डिटेल्स देगा। नेक्स्ट इज if it is not filed, then application shall be deemed to be abandoned. If a person fails to file complete specification within 12 months, तो उसकी application को abandon कर दिया जाएगा। Third point is, where 2 or more applications in the name of some applicant are accompanied by provisional specification in respect of inventions which are cognate or where one is modification of other, if controller is of the opinion that it constitutes single invention, he may include it in one patent and allow one complete specification filed for it. अगर एप्लीकेंट ने 2 से ज़्यादा एप्लीकेशंस प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल करी है जो या तो रिलेटेड इन्वेंशन है या एक इन्वेंशन की मॉडिफिकेशन है, तो कंट्रोलर डिसाइड कर सकता है कि इन सबको एज अ सिंगल इन्वेंशन कंसिडर करे एंड ही may allow the applicant कि वो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करे फॉर ऑल सच प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन। द पीरियड ऑफ 12 months shall be calculated from the date of earliest provisional specification. It says that 12 months का जो पीरियड है वो कैलकुलेट होगा from the date when earliest provisional specification was filed. अगर मल्टीपल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी है तो सबसे पहला वाला प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो आपने फाइल करा था वहाँ से 12 मंथ का पीरियड स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने पहली प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी जनवरी में, सेकंड करी मई में एंड थर्ड करी अगस्त में, तो जो 12 मंथ्स का पीरियड है टू फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इट शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन फर्स्ट प्रोविजनल एप्लीकेशन वाज फाइल्ड, दैट इज जनवरी। टू समराइज सेक्शन 9, इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट,
कि कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल हुई है तो एप्लीकेंट को 12 मंथ्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होगा। सेकंड, कि अगर वो फेल हो जाता है 12 मंथ्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना तो उसकी एप्लीकेशन अबैंडन हो जाती है। थर्ड, कि अगर एप्लीकेंट ने 2 से ज़्यादा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी है रिलेटेड इन्वेंशन के लिए, या जिसमें कोई भी इन्वेंशन एक मॉडिफिकेशन है दूसरे का, तो कंट्रोलर डिसाइड कर सकता है कि उसको सिंगल इन्वेंशन एप्लीकेशन ट्रीट करे और वो अलाउ कर सकता है एप्लीकेंट को कि वो एक ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करे, और जो भी 12 मंथ्स का पीरियड है वो स्टार्ट होगा द डेट फ्रॉम विच अर्लीस्ट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वाज फाइल्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन शुड एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट बी फाइल्ड। पेटेंट एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइल कर देना चाहिए, एज डिले करने के 2 रिस्क हैं। फर्स्ट इज़ कि कोई दूसरा इन्वेंटर वही इन्वेंशन के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एंड सेकंड, देयर मे बी एन इनएडवर्टेंट पब्लिकेशन। एक्सीडेंटली आपका पेटेंट पब्लिश हो सकता है एंड वो पब्लिक बन सकता है, जिससे कि पेटेंट के रजिस्टर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो पेटेंट एप्लीकेशन को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट फाइल कर देना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक is general procedure for obtaining a patent. First is filing of patent application. सबसे पहले इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है। ये एप्लीकेशन प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल की जा सकती है। सेकंड, पब्लिकेशन आफ्टर 18 मंथ्स। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होने के 18 मंथ्स बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाती है। इस पब्लिकेशन के बाद इन्वेंशन का कंटेंट पब्लिक डोमेन में आ जाता है। थर्ड, प्री ग्रांट ऑपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन। जब एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती है तो कोई भी पर्सन जो इस इन्वेंशन से अफेक्टेड है वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। इस स्टेज पर इन्वेंशन के ग्रांट होने के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते हैं। फोर्थ इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एप्लीकेंट या कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी पेटेंट की एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। ये रिक्वेस्ट फाइल होने के बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग्जामिनेशन, ग्रांट और रिफ्यूज़ल। एग्जामिनर एप्लीकेशन को असेस करता है, वो चेक करता है इन्वेंशन की नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, एंड उसके बाद एग्जामिनर पेटेंट ग्रांट कर सकता है या उस पेटेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। अगर एग्जामिनर इन्वेंशन को पेटेंट देने लायक समझता है तो पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसका ग्रांट पब्लिकेशन होता है। इससे पब्लिक को पता चल जाता है कि ये इन्वेंशन पेटेंट के अंडर आ गई है। सेवेंथ इज पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन टू ग्रांट पेटेंट। पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी कोई भी पर्सन जो इन्वेंशन से अफेक्टेड है वो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। इस स्टेज पर भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं। एंड द लास्ट इज डिसीजन बाय कंट्रोलर। सभी ऑपोजिशन और ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करने के बाद कंट्रोलर फाइनल डिसीजन लेता है कि पेटेंट ग्रांट होना चाहिए या नहीं। अप नेक्स्ट we'll dive into more exciting topics, so be sure to stick around and catch the next video. And don't forget to like, share and subscribe to stay updated.